Hi students, today we are going to continue the naturalization of humans and the humanization of the nature. In the last video, we have discussed about the naturalization of humans. So in that video, we discussed that how the natural forces or how the natural environment controls the human beings, or how it controls the activities of the humans by the climatic conditions, by the physical features, or various types of the conditions that the activities of the human are controlled or determined by the nature or by the environment. Uh, environment determines that which type of the clothes a human being would wear, what he would eat, what activities he would do. All these things are controlled by the human naturalizations when the technology is not developed. If we take the examples in the earlier times or in the early times when the technology was not developed, the human head could not travel far away because of the natural foundations. The human could not grow whatever he wished at the particular place because the crops, the plants, uh, everything was controlled by the natural climate. So इन दैट केस उस जमाने में इंसान को खेती के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। इंसान हंटिंग कर सकता था, तो क्योंकि और चीजें वो डेवलप वो चीजें नहीं कर सकता था बिकॉज द टेक्नोलॉजी वॉज नॉट डेवलप्ड. सो इन दैट केस द nature was controlling the human, or the activities of the human was determined by the nature. So this type of the interaction, when this type of interaction when it happens between the nature and the human being, this is called the environmental determinism. What it is called? Environmental determinism. When this is the environmental determinism, means the activities of the human being is determined by the environment. Now, and when such type of interaction is there between the nature and the human being, what happens at the if you see this paragraph, you will understand. At the stage of very low technological development, we can imagine the presence of naturalized human. मतलब जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो इंसान जैसा नेचर का एनवायरनमेंट है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसी तरह से उसको रहना पड़ता है. तो लिसन टू द नेचर, और उस टाइम पे इंसान को क्या करना पड़ता था? नेचर को सुनना पड़ता था. बिना नेचर को सुने, क्योंकि नेचर जिस तरह से का नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वैसा ही उसको करना पड़ता था. वॉज अफ्रेड ऑफ इट्स हरी, और इस वजह से इंसान नेचर से डरता था और इसी वजह से वह नेचर की वर्शिप करता था. अगर हम हमारे कल्चर देखे, अगर हमारे एंशिएंट टाइम देखे, तो इन दैट टाइम in India, not only in India but in most of the cultures or in most of the civilizations, the nature was the natural factors were worshipped. For example, water, air, fire, sky, even animals, rivers, everything was worshipped because that. Why did the human being worship them? Because he wished that these forces do not harm the human beings, ताकि इंसान को ये फोर्सेस नुकसान ना पहुंचाए और उसके फेवरेबल कंडीशंस में रहे. लेकिन जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, तो इंसान क्या होता है? तो नेचर होती है धीरे धीरे उसके ऊपर खुद का कंट्रोल करना शुरू कर देता है. खुद का कंट्रोल करना शुरू कर देता है मतलब जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से वह बाउंड होता था, उनको वह धीरे धीरे यूज करने लग जाता है. अपने जो फाउंडेशन से नेचर की, जैसे एनवायरमेंट की है, या एनवायरमेंट की फॉर एग्जांपल
जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी, जो कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे सर्दियों के मौसम में आ, आ, जो जनरल एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता था पहले के जमाने में। लेकिन आज क्या हो गया है, जो बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता था तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता था। जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती थी तो वहां पे इंसान बारिश के मौसम में या तो उनके हाउसेज को बारिश की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता था, या फिर वह बारिश के टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता था, क्योंकि नहीं तो उसके पास में कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी ऐसी कि जो वह पानी पे चल सके, या बहुत ज्यादा पानी के अंदर भी चल सके। लेकिन आज क्या हो गया, कई तरह की मशीन हो गई है, कई तरह के ऐसे व्हीकल्स बन गए हैं जो कि पानी के ऊपर भी चल सकते हैं, और जहाँ पे रफ टेरेन हो जाता है, सपोज कीजिए कि आज जहाँ कई आपने देखा होगा कहीं पर जहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो वहां पे सिंपली इंसान का जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाय द एयर ट्रैफिक और बाय द एरोप्लेन और द हेलीकॉप्टर्स यू कैन रीच दियर even in any part in any type of the climate now that we can travel because of the development of the technology। इसी तरह से एक यहाँ पे आपके बुक में स्टोरी दे रखी है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे आपने डेफिनेटली यू मे हैव स्टडीड अबाउट द पोलर क्लाइमेट और द टुंड्रा क्लाइमेट। वहाँ पे क्या होता है कि बारिश सर्दियों के मौसम में इतना द टेम्परेचर इज below the -30 or even -40, so for human being it is not it's not possible to survive into the open air or in the open climate, or it's not possible to carry out their day-to-day activities as in the summers। तो जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जहाँ पे क्लाइमेट -50 या -40 तक चला जाता है, तो पहले जमाने में क्या होता था कि इंसान को जो जितने समय के लिए, जैसे वहाँ पे बहुत 6 मंथ के लिए विंटर सीजन होता है, और विंटर सीजन में वहाँ पे हमेशा अंधेरा होता था, तो इन 6 महीने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता था, अपने घरों में बंद होकर रहना पड़ता था। उसको अपना जो भी खाने पीने की चीजें का इंतजाम करना पड़ता था, वो पहले ही उसको जो 6 मंथ मिलते थे गर्मी में, उन्हीं में ही वो इकट्ठा करके रखना पड़ता था। वो कहीं बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि स्नो इतना ज्यादा था कि वो इतना ज्यादा होता है वहाँ पर कि वह ट्रेवल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, दिस इज द प्लेस नेम ट्रोंडियम, इट इज इन टू द टुंड्रा रीजन, जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट 6 मंथ के लिए कंप्लीटली स्नो कैप या स्नो होता है। So there's the one person that her name is Kari. Now, even in the winter season, where the winter is very fierce winds, बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत ज्यादा हेवी स्नोफॉल होता है। Even in such type of climate or in such type of conditions also, she used to get up early in the morning, and 8:30 she used to travel. She used to travel to her office, and she used to work there is without affecting by the environment. How it happened? Because now she has the special type of the car, very powerful car, which has the powerful lights, which has the air conditioned cabinet. So in that she can control the climate। जो उसके टायर्स हैं कार के, वह स्पेशली डिजाइन है स्नो पे चलने के लिए, तो वो कितना ही स्नो हो फिर भी उसके ऊपर वो अपनी कार से चल सकते हैं। हेडलाइट्स इतनी उसकी पावरफुल है कि वो कितना भी अंधेरा हो फिर भी उसके अंदर वो लाइट से अरेंजमेंट कर देते हैं। सेम ऐसे व्हेन शी रीचेस टू द ऑफिस इज आल्सो आर्टिफिशियली हीटेड, मींस इट इज द एयर कंडीशन। सो even the outside the temperature is around -30, but inside her office the climate is artificially controlled at the 23 degrees Celsius because of the technology। And her office building or her office campus is also designed specially with the by the ग्लास डोम, मतलब पूरा का पूरा ऑफिस ग्लास से कवर्ड ऊपर, एंड
सो इन द विंटर्स क्लास के अंदर इसकी वजह से क्या होता है कि विंटर्स के अंदर जो स्नो है वो अंदर नहीं आ पाता है, जबकि जब गर्मी होती है तो उसकी जो हीट है या जो सनलाइट है वो अंदर तक आके उसको गर्म कर देती है। जब इस तरह का क्लाइमेट होता है तो आपने देखा होगा कि जो हर क्रॉप का एक सीजन होता है, वह क्रॉप उसी सीजन के अंदर ग्रो कर सकती है। वाई? बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द नेचर, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट की वजह से हर प्लांट का या हर क्रॉप का एक सीजन होता है। तो जब पुराने जमाने में इंसान को वही चीज खानी पड़ती थी जैसा क्लाइमेट उसको अलाउ करता था, जैसा उसके क्लाइमेट में पैदा हो सकता था। बट नाउ व्हाट हैपेंस, any type of thing in any part of the world we can get any type of the fruits or the eatables or the vegetables, because now they are transported from any part of the world to any another part of the world because of the technology. So that happens with the flooding. Where it is impossible to grow any type of the vegetables and the fruits in minus 35 degrees. Now she has all the tropical fruits like banana, kiwi, and other all types of the vegetables in her house and at her office table, because these are flown from the other part of the world to the current place. So what's happening? And now even now by the click of the mouse, she can communicate, she can have the talk, she can watch with her colleagues from any part of the world because of the internet and the computers. तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस या एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के बावजूद भी इंसान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से उन क्लाइमेटिक कंडीशंस को सरपास कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। अगर हेवी स्नोफॉल होता है तो स्पेशल टाइप्स ऑफ द कार्स एंड उसके स्पेशल टाइप्स ऑफ द टायर से वो उसकी ट्रेवल कर सकता है। सर्दी होती है तो वहां पे वो अपना क्लाइमेट कंट्रोल कर सकता है। पेड़ पौधे अगर फल सब्जियां मौसम की वजह से नहीं उग पाती हैं तो वो दूसरे और दुनिया की किसी दूसरे कोने से मंगवा सकता है। तो इनसे क्या हो रहा है कि इंसान ने जो नेचुरल बाउंडेशन थी, जो जहाँ पे एक समय में जहाँ पे इंसान को जैसा नेचर का इन्वायरमेंट होता था वैसे रहना पड़ता था, आज वह उस क्लाइमेट के ऑपोजिट रह सकता है, उसको वो कंट्रोल कर सकता है, क्लाइमेट को इंसान कंट्रोल कर सकता है। तो दैट इज द नेचुरल ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, मतलब इंसान ने नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल दिया, या इंसान ने नेचर की जो क्लाइमेट कंडीशन है उसको अपने फेवरेबल बना दिया। तो इसको बोलते हैं नेचुरल ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, एंड इट इज दिस इज कॉल्ड एज द पॉसिबल दिस टाइप ऑफ द इंटरेक्शन मीन्स जब इस तरह का इंटरेक्शन होता है नेचर के और इंसान के बीच में कि वो अपने social with the social and cultural development human develops the better and more efficient टेक्नोलॉजी। तो अब ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है कि इंसान जहाँ पे दे मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे इंसान उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से फ्री हो जाता है, वो उससे बाउंड नहीं होता है। तो एक जमाने में उसकी जरूरत है वो थी, लेकिन ना वो उससे फ्री है। दे क्रिएट पॉसिबिलिटी विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और अब वो क्या करते हैं, दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में वह पॉसिबिलिटीज खोज लेते हैं। ये सारी चीजें जो इंसान ने की, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल, सॉरी टेम्परेचर कंट्रोल किया, किससे किया? बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एंड वेयर डज द इलेक्ट्रिसिटी कम? इट इज मेड बाय द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नेचर। जो नेचर के अंदर रिसोर्सेज है उन्हीं को यूज करके, उन्हीं में पॉसिबिलिटी ढूंढ के उसने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसी से वह
जो क्लाइमेट की बाउंडेशन से उनको वो तोड़ने में आ जाता। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर, और इन तरह की एक्टिविटीज का हर जगह पे जो एक्टिविटीज है ये हर जगह पे हो रही है। यहाँ हियर आर द हेल्थ रिजोर्ट्स ऑन हाईलैंड्स, जहाँ पे कितने ही हाई माउंटेन्स थे वहाँ पे हेल्थ रिजोर्ट्स बन गए। ह्यूज अर्बन स्प्राउट्स, बड़े बड़े शहर बसा लिए हैं। फील्ड्स, जो खेत थे उनके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उनके अंदर नई तरह से पैदावार शुरू करी है। ऑर्चिड्स, पास्चर्स, मतलब हर जगह पे इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी से जो क्लाइमेट के फाउंडेशन से उनको चेंज कर दिया। एंड दिस टाइप ऑफ द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म दिस एज द पॉसिबिलिटी, और इस तरह का जब इंटरेक्शन होता है, जब इंसान नेचुरल एनवायरनमेंट के कंडीशंस को कंट्रोल करने लग जाता है, तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड द पॉसिबिलिटी। और जब नेचर इंसान को कंट्रोल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। बट नाउ देयर आर सम न्यू थ्योरीज। अब इसके अंदर द जियोग्राफर ग्रिफिथ टेलर, another geographer, his name is Griffith Taylor, introduced another concept with the reflex of the middle path। और जो ग्रिफिथ टेलर है उसने एक मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग का आइडिया के बारे में बात करता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो वो है कि जहाँ पे नेचर इंसान को कंट्रोल करती है, और एक दूसरा वह इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे इंसान नेचर को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकता है। तो देयर इज द middle path between the environmental determinism where the environment determines the human activity, possibilism where the human being starts finding out the possibilities by the help of the technology। He termed it is the neo-determinism। तो एक तो उसने एक अलग टर्म, एक मध्यम मिडिल पाथ का फाइंड आउट किया है, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है नियो डिटरमिनिज्म, और द स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। दैट इज द स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। जो उसका कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉप एंड गो। नाउ व्हाट इज दिस स्टॉप एंड गो? आपने देखा है कि जब ट्रैफिक लाइट्स होती है, जैसे ही रेड लाइट्स होती तो हमें ट्रैफिक अपने आप रुक जाता है, और जैसे ग्रीन लाइट्स होती है तो ट्रैफिक का जाना अपना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो ये है स्टॉप एंड गो डिटेल। अब ये नेचर के इंसान के बीच में क्या होता है, कैसे हो सकती है, क्या कैसे कंसेप्ट काम कर सकता है? अगर क्या इंसान हर नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, एक दिन इंसान का ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे कि हम नेचुरल कैलेमिटीज देखते हैं, कई जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी ऐसा टाइम आता है कि जब बाढ़ आती है या लैंडस्लाइडिंग्स होती है, तो वो डैम्स टूट जाते हैं और इंसान को ही का ही डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। वैसे ही जब कई बार ऐसा होता है कि जो एरोप्लेन्स बनाते हैं या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आते हैं, तो वो एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। कई जगह पे बड़े बड़े पुल बनाते हैं तो वह फेल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कभी अगर इंसान ज्यादा जैसे डिजीजेस के बारे में अगर ज्यादा खोज करना शुरू कर देता है, तो ऐसी डिजीज आ जाती है जिसको इंसान को ही वो उल्टा डिस्ट्रक्शन कर देती है, जैसा कि एग्जाम्पल ऑफ द कोरोना वायरस। वी से दैट अभी इंसान in today's time we say that मतलब इंसान सोचता था कि उसने बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा आविष्कार कर लिया, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, मेडिकल साइंस में बहुत ग्रोथ कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया है। लेकिन नेचुरल एक ऐसा नेचुरल वायरस आता है जो सारी जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी डेवलपमेंट है, उसको सबको फेल कर देता है। इंसान की उसके आगे बिल्कुल नहीं चलती है, बिल्कुल इंसान असहाय हो जाता है, जहाँ पे एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म वापस आ जाता है।
एक टाइम पे जब इंसान बोलता पॉसिबिलिटी की बात करता था कि नहीं, इंसान मेडिकल साइंस के अंदर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नेचर की तरफ से जैसे रेड नेचुरल फोर्सेस एक्टिवेट होती हैं तो सब के सब वह खत्म हो जाता है, सब के सब अपनी जगह पे, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड ही हैज टू फॉलो द मिडिल पाथ, जहाँ पे स्टॉप एंड गो डिटरमिनेशन। स्टॉप मतलब अगर नेचर की तरफ से कोई रेड सिग्नल आता है, जहाँ पे नेचुरल की तरफ से ये लगता है कि ये चीज नहीं हो सकती है, या अगर बिना नेचर को समझे, अगर इसका थोड़ा सा वो देखते हैं, द कॉन्सेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर आर सिचुएशंस ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे कंप्लीटली नेचर की तरफ से ही हम डिटरमाइंड हो, नहीं कोई ऐसी कंडीशन है कि एब्सोल्युटली हम नेचर से फ्री हो जाए, ऐसे दोनों ही नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये ऐसा भी नहीं है कि नेचर से हम वी आर कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द नेचर और देयर इज द कंप्लीट नेसेसिटी, और नहीं ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पे हम नेचर के बाउंडेशन से पूरी तरह फ्री हो जाए। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। इंसान नेचर को कब जीत सकता है, व्हेन ही ओबे द नेचुरल लॉज। हम नेचर को तभी ही जीत सकते हैं, या नेचर को हम तभी ही कंट्रोल कर सकते हैं जब हम नेचर के द्वारा जो लॉज बनाए उनको हम ओबे करें। दे हैव टू रेस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशंस। जहाँ पे जैसे नेचर की तरफ से जिस चीज को हम नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हमें जिस वहां पे हमें रुक जाना चाहिए, जहाँ पे कोई रेड सिग्नल्स है उस जगह पे हमें रुक जाना चाहिए, और जब भी नेचर की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है, या जिस लॉज को हम समझ सकते हैं, जिस लॉज को हम पूरी तरह से कर सकते हैं, तब हमें अपने नेचर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स। इसका ये मतलब है कि हम कोई भी पॉसिबिलिटी नेचर के अंदर तभी बना सकते हैं जब जो कि नेचर के द्वारा लिमिटेशंस बनाई गई है। जो नेचर की लिमिटेशंस है उन्हीं के अंदर रहकर हम कोई भी नई पॉसिबिलिटी या नया डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नेचर की जो पॉसिबिलिटी, नेचर की जो लिमिट्स है उसको क्रॉस कर सकते हैं। So which do not damage the environment and there is no free run without the accidents। और इन लिमिट्स के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो नेचर को डैमेज ना करे, बिकॉज वी कैन नॉट रन फ्रीली विदाउट एक्सीडेंट। अगर हम बिना केयरफुली अगर ड्राइव करते हैं या रन करते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए जब भी हम कोई भी डेवलपमेंट करें तो हमें नेचर की जो लिमिट्स है उनके अंदर रहकर कर सकते हैं। द फ्री रन विच द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अटेम्प्टेड टू टेक ऑलरेडी रिलेटेड इन द ग्रीन हाउस गैसेज। जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से जब हम फ्री हैंड होके डेवलपमेंट कर रहे थे, फ्री हैंड होके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ है नेचर की तरफ से, देयर आर द ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट्स, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसेडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडिंग द लैंड्स। ये किन चीजों के रिजल्ट है, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड रिसेडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडिंग लैंड। These are the results of the unwise development, unsustainable development, जहाँ पे नेचर का ध्यान नहीं रखा गया और डेवलपमेंट करते गए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, यही डेवलपमेंट हमारे इंसान को खत्म कर देगा। द न्यू डिटर्मिनेशन conceptually attempt to bring the balance, nullifying the either or डिकोटोमी से दोनों चीजों के अंदर बैलेंस ना ही। ऐसा नहीं कि केवल हम एक चीज को चुने कि या तो नेचर को चुन ले या इंसान को चुन ले, नहीं,
ऐसा नहीं होना सकता है। दोनों को हैंड इन हैंड चल सकते हैं। दोनों चीजें जो डिफरेंट हैं उनके बीच में एक दो जो डिकोटोमी मतलब जो नेचर और जो इंसान अलग अलग चीजें उनको दोनों को एक साथ यहाँ पे पर चलना पड़ेगा, तभी ये